Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Parties and Party System in India, and under this chapter, we are discussing the developments of developments in the Indian politics after this after the election of third after the third general election as well as the state election. And we have discussed that the decade of 60 was considered as a dangerous decade because so many things were happening during that time. Like, first of all, we were attacked by China in 1962, and then we see that there was death of Nehru. Then food crisis was being faced by the country. Then Indo-Pakistan War of 1965, and in between we see that there was change of leadership also took place. After the death of Nehru, it was a very big question that what will happen after Nehru? Will India be able to continue as a democratic country, or democracy will come to an end in India with the end of Nehru? This was the biggest question, but we see that we have solved this problem in a very effective manner. As we have seen, Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India, and earlier he used to hold very important ministries in the ministry of Pandit Nehru, and he was a very principled person. And we have seen that during the Prime Ministership of Lal Bahadur Shastri, the country was facing mainly two challenges. The first was the problem of food shortage was being faced by our country, and for that purpose he given this slogan of Jai Kisan. At the same time, there was Indo-Pakistan War of 1965, and for that purpose he gave the slogan of Jai Jawan. So Jai Jawan, Jai Kisan was the most important slogan of Lal Bahadur Shastri. And in the previous class we have seen that when when there was war between India and Pakistan, after the war there was this signing of agreement with Muhammad Ayub Khan, who was the president of Pakistan, and the Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri. And these two leaders were in Tashkent for signing the agreement. This Tashkent was at that time, it was in USSR, and presently it is the capital of Uzbekistan. And we have seen that on 10th of January 1966 लाल बहादुर शास्त्री डाइड देयर ओनली. ताशकंद में ही उनका डेथ हो जाता है, जो कि एक मिस्ट्री के तरह से सामने आता है, और इसके लिए काफ़ी होते हैं जांच पड़ताल, बट ये पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ. सो नाउ वी हैव सीन कि इस तरह से लीडरशिप जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री. एंड नाउ again with the death of Shastri, again question was again there ki who will become the Prime Minister after Shastri. And now we see there was an intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi. These two leaders were there who were considered to be appropriate for the post of Prime Minister, or we can say for the leader of Congress Parliamentary Party, Morarji Desai and Indira Gandhi. So at that time we see that earlier, not that time, earlier Morarji Desai served as the Chief Minister of Bombay. At that time Maharashtra and Gujarat was joined together as Bombay, so he was the Chief Minister of Bombay, and he was also a minister at the center. ठीक है.
एंड इंदिरा गांधी जो कि जवाहरलाल नेहरू की, शी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, and she had been Congress president in the past also, and she had also been Union Minister for Information in the Shastri government. लाल बहादुर शास्त्री के मिनिस्ट्री में वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी. तो अब क्या हुआ कि ये दोनों ही जो थे वो कंटेंडर थे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, और इसके लिए ये हुआ कि जो पार्टी के जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, दे डिसाइडेड टू बैक इंदिरा गांधी, है ना. बट देर वॉज लैक ऑफ यूनानिमस डिसीजन because there were some members who wanted, who supported Morarji Desai. So there was a lack of unanimous decision, and in the absence of unanimous decision, there this voting took place कि who will become the leader of the Congress parliamentary Congress party in the Lok Sabha, है ना. लोक सभा में जो कांग्रेस पार्टी है उसका नेता कौन बनेगा, इसके लिए इलेक्शन होता है. एंड वी सी दैट कंटेस्ट में जो सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होता है. सीक्रेट बैलेट का मतलब ये हुआ कि आपने किसको वोट दिया है ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, है ना. और इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया, और पार्टी के मोर देन 2/3 MPs have supported Indira Gandhi, है ना. More than 2/3 MPs have supported Indira Gandhi as their leader. And now we see that again this transition of power was done peacefully. कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं हुआ. हाँ, कंटेस्ट हुआ, इलेक्शन हुआ, सीक्रेट बैलेट था, बट वॉट एवर डिसीजन वॉज देयर इट वॉज एक्सेप्टेड बाई ऑल, है ना. तो इस तरह से हमारे जो ये ट्रांसफ़र ऑफ लीडरशिप हो रहा है, इससे ये पता चल, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो हो रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई थी, है ना. अब हमारी डेमोक्रेसी काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी. एंड नाउ वी कम टू द दिस पॉइंट दैट व्हाई the senior leaders of Congress supported Indira Gandhi as their leader. Why more than 2/3 of the Congress parliamentary more than 2/3 of the Congress members of Lok Sabha supported, or they gave their vote to Indira Gandhi as the Prime Minister. What was the reason behind it? That there was some reason. We find that Indira Gandhi was not a very experienced politician at that time. She was Union Minister for Information in the Ministry of Lal Bahadur Shastri, but that was only for a short period of time. And the period of time was not very long. And the senior Congress leaders, they were of the opinion that Indira Gandhi was lacking administrative and political experience, and because of her inexperience, she will become dependent on the senior leaders, है ना, for support, for guidance. She will not be able to take decisions on her own because she was inexperienced. Administration का एक्सपीरियंस नहीं था, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था. तो she will become prime minister. Okay, we will support her as prime minister, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो डिसीजंस लेना होगा उसमें वो अपने से कुछ भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. एंड शी विल ऑलवेज नीड द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ the senior leaders of the Congress, and that is the reason we find that they supported Indira Gandhi and they did not support Morarji Desai, because Morarji Desai के प्राइम मिनिस्टर बनने से जो सीनियर लीडर्स थे उनका सारा पार्टिसिपेशन ख़त्म हो जाता. बट उनको ये लगता था कि अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है तो वो एक्टिव रह सकते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना. अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि इंदिरा गांधी विद इन फ्यू ईयर्स, इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ही अच्छे इफ़ेक्टिवली सी
स्टार्टेड टू लीड द पार्टी, है ना। 1967 के इलेक्शन में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टी को लीड किया, और ये जो सोच थी कि सी विल नीड द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ द सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस, दैट कम्प्लीटली बिकेम रॉन्ग। एंड इसी समय में इकोनॉमिक सिचुएशन जो कंट्री की थी वो ख़राब हो गई, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है ना। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, उससे उनका जो पार्टी में कंट्रोल था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो दिखा देती हैं दुनिया को कि उनके अंदर क्या लीडरशिप स्किल है। So now we see that Indira Gandhi became the Prime Minister of India, and now the country was going to face the 4th general as well as the state election. And this time was very disturbing for the whole country, because as we have seen very frequently two prime ministers they had died in quick succession, and now the new prime minister who was in power was not having political or administrative experience, and she was in office for less than a year. So this was the situation which was prevailing, and not only this, economic crisis was also there. The country was facing economic crisis. What was the reason for this economic crisis? क्यों वो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हम फेस कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट मानसून का फेल होना सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हमारा जो एग्रीकल्चर उस समय भी और आज भी वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर इरिगेशन। तो जब भी फेलियर ऑफ मानसून होता है, इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ agricultural productivity, and this also caused a widespread drought, and there was decline in agricultural production, and this led to the serious food shortage, है ना। और इसी के साथ हमें फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिसके कारण हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम होते जा रहे थे, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इस समय कम हो गया था, बिकॉज जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ आर दिस अटैक ऑफ चाइना इन 1962, है ना। उसका जो इम्पैक्ट था वो अभी तक नज़र आ रहा था। तो चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, सार प्राइस हो रहा था, है ना। और जो खर्चे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे होना चाहिए था, वो खर्च जो है डाइवर्ट होके चला गया था मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। सो ये जो चीज़ें, ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ही ग्रेव इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री वाज फेसिंग। और इसी में जो इंदिरा गांधी ने सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया, वो था इंडियन रुपीज़ को डिवैल्यूएट करने का। डिवैल्यूएट का मतलब जो करेंसी है अपनी, उसके वैल्यू को उन्होंने कम कर दिया जानबूझ के, है ना। ऐसा डिसीज़न लिया कि वैल्यू को कम कर दिया, और ऐसा माना गया कि ये जो डिवैल्यूएशन उन्होंने किया है, इट वाज डन अंडर द प्रेशर फ्रॉम द यूएस, क्योंकि हमको यूएस पे बहुत ज़्यादा उस समय डिपेंड होना पड़ रहा था। तो यूएस के प्रेशर के कारण ये करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया। और अगर हम देखें इस डिवैल्यूएशन के बाद क्या हुआ, अगर पहले $1 से हम अर्लियर $1 कुड बी परचेज फॉर लेस देन ₹5, 5 रुपये से कम ही लगता था जिसमें हम $1 खरीद सकते थे। अब डिवैल्यूएशन के बाद डॉलर की प्राइस बढ़ गई, अब हमें $7 से भी ज़्यादा देना पड़ रहा है $1 के लिए। तो पहले जहाँ $1 के लिए 5 रुपये से कम लगता था, अब उसी $1 के लिए हमें $7 से ज़्यादा लग रहा। तो ये डिवैल्यूएशन किया गया। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्राइस रेंज तो बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि जब इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन घट चुका है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है, एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, खर्चे जो है वो मिलिट्री पर्पस पे ज़्यादा हो रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। जो एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होना चाहिए था वो मिलिट्री पे हो रहा था। तो इन सब से प्राइस राइज होना बहुत ही नेचुरल था।
है ना। और जो लोग थे, पीपल हैव स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस प्राइस राइज। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ थे उनके प्राइस में बढ़ने से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो फूड स्कैरसिटी थी, फूड की कमी थी, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा जा रहा था। और अगर हम देखें तो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री में थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। बंद और हड़ताल जो थे वो फ्रिक्वेंटली हो रहे थे। बंद और हड़ताल इट इंडिकेट्स द डिससेटिस्फैक्शन इन द पीपल, है ना। तो बंद और हड़ताल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और गवर्नमेंट जो है वो इन बंद और हड़ताल को ये नहीं समझ दिख रही थी कि हाँ ये क्यों बंद और हड़ताल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग प्रॉब्लम में, दे आर फेसिंग problems, especially economic problems. So that was the reason for their protest and strikes and hartal and band, whatever they were doing. But the government is considering it as a law and order problem and not as an expression of people's problem. So it was not concerned, we can say that लोगों की प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने की तरफ बढ़ना चाहिए, न कि आप ये सोचिए कि अगर आपकी जनता हड़ताल कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज़ द dissatisfaction of the people, and this dissatisfaction is because of the problems they are facing in the country. So government का जो कहेंगे एटीट्यूड जो था वो सही नहीं था, और इसके कारण जो लोगों के अंदर जो बिटरनेस थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, पॉपुलर अनरेस्ट बढ़ जाता है. तो ये सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी. तो अगर हम कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक क्राइसिस, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे रीज़न क्या है? फेल्ड मानसून, ड्राफ्ट, बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, reduction in industrial production, then reduction in export, and more resources were spent on military rather than economic development. हाँ, तो इस कारण से इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने ही प्राइस राइज हुआ, है ना. These economic crisis gave birth to price rise, and this price rise caused dissatisfaction among the people, and they started protesting, है ना. protest ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन है कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था. और इसी समय हम देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज थी उन्होंने भी दे हैव आल्सो स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी. इसी तरह से आगे एक और, जैसे सीपीआई के बारे में हमने जब फॉरेन रिलेशन देखा था तो हमने देखा था इंडो चाइना वॉर के कारण सीपीआई जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है ना. और अब आगे फर्दर और भी डिवीज़न हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जो कि सीपीआई एम बनी थी उस समय जब इंडो चाइना वॉर हुआ था. तो उसके इम्पैक्ट से सीपीआई मेन पार्टी रह के उससे एक सीपीआई एम निकल गया था. अब क्या होता है कि इसी सीपीआई एम से फिर से एक नई पार्टी बन जाती है, सीपीआई एमएल, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. और ये जो एमएल थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे, दे बिलीव्ड इन आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल, दे बिलीव्ड इन वायलेंस, है ना. they were the supporters of war and violence, and they started to organize peasants agitations. So this was also one of the problem the country was facing, है ना. So we can say that not violent, we can say armed agrarian struggle
led by CPI-ML. ठीक है, CPI-ML ने लीड किया आर्म्ड अग्रेरियन स्ट्रगल को. सो दिस वाज द सिचुएशन विच वॉज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. इसी के साथ एक और चीज़ जो हमें नज़र आती है कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन में, दैट वाज नॉन कांग्रेसिज्म. एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज दिस नॉन कांग्रेसिज्म. तो जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है, CPI-ML आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल को लीड कर रही, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम सोचें कि ये सब कुछ में पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना. जब देश की सिचुएशन ऐसी है तो उसमें पार्टी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व होना बिल्कुल लाजमी हो जाता है, बिल्कुल नेचुरल हो जाता है. और इस समय में जो अपोजिशन पार्टीज थे वो दे हैव स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल एंड दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, है ना. दिस इज द रोल विच इज़ टू बी प्लेड बाय द अपोजिशन. तो पार्टीज जो थी वो अपोज कर रही थी, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रही थी, है ना. एंड जो पार्टीज कांग्रेस के अपोजिशन में थी उनको ये लगा कि उनका जो वोट वो कांग्रेस के अगेंस्ट है ना. बट कांग्रेस के अगेंस्ट जो भी पार्टीज़ हैं वो अलग अलग हैं, और इस अलग अलग होने से क्या होता है कि उनका जो जनता जो कांग्रेस को नहीं चाहती है वोट देना, वो उन्हें वोट देती है, लेकिन उनका वोट बट जाता है ना. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ देयर वोट्स कांग्रेस इज इन पावर. अगर हम सब एक हो जाएं, जो कांग्रेस के अगेंस्ट हैं पार्टीज, वो सब अगर एक हो जाए तो हमें कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिलेंगे. कांग्रेस इसलिए जीतती है क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट में जो पार्टीज हैं वो अलग अलग हैं. तो जो भी जनता अपनी वोट कांग्रेस को नहीं देती है, बल्कि वो चाहती है कांग्रेस नहीं गवर्नमेंट में बनाए, तो वो कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को वोट दे देती हैं, बट ये वोट बट जाता है. ठीक है, तो ये उनका ये अब समझ में आने लगा कि उनको ये लगने लगा कि हम अगर एक हो जाएं, जो भी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं वो सभी एक हो जाएं, तो हम कांग्रेस विल नॉट बी इन सच अ सिचुएशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, तो पार्टीज जो हैं वो जिनके आइडियोलॉजीज बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट थे, प्रोग्राम्स एक दूसरे से डिफरेंट थे, वो एंटी कांग्रेस फ्रंट पे एक दूसरे के साथ आने लगे कई सारे स्टेट्स में, है ना. और उनके बीच में इलेक्टोरल एडजस्टमेंट होने लगा कि कैसे हमें सीट शेयरिंग करनी है. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो नॉन कांग्रेसिज्म की बात हम कर रहे हैं, इसमें जो डिफरेंट अपोजिशन वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके में किसी भी तरह की कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है. आइडियोलॉजी अलग है, प्रोग्राम्स अलग है, पॉलिसीज अलग है, स्टिल they are coming together for the purpose of gaining power only. The main purpose was only to gain power. The main purpose was to remove Congress from the position of this ruling party, है ना. And for that purpose they entered into electoral adjustment of sharing of seats, है ना, in many of the states. And one more thing was there. These opposition leaders were also knowing that Indira Gandhi was an inexperienced leader. She was not having any political or administrative experience, so they thought that they can take advantage of this situation, and they were also aware of the internal factionalism which was there इनसाइड द कांग्रेस. कांग्रेस में फैक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था इस समय में, है ना, क्योंकि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी को ही लेकर, जैसा हमने देखा, यूनानिमस डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए वोटिंग करानी पड़ी थी. इसका मतलब वहाँ पर फैक्शन था और अपोजिशन इन बातों को समझ चुकी थी, है ना. तो इस तरह से उनको ये एक अपॉर्चुनिटी समझ में आया कि अभी इलेक्शंस भी होने हैं, तो इस समय को हम यूज़ कर सकते हैं कांग्रेस को की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, है ना.
और इसी में सोशलिस्ट लीडर थे जैसे राम मनोहर लोहिया जैसे जो लीडर्स थे, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को एक नाम दिया नन कांग्रेसिज्म. सो दिस नेम वाज गिवन बाय Ram Manohar Lohia, who was a socialist leader. And his argument was that Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of ordinary people. So that is why, because it is undemocratic, because it is anti poor, and that is why we are coming together. All the non-Congress parties are coming together so that we can again establish democracy in the country. ठीक है, तो इसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट दिया गया दैट इज इम्पॉर्टेंट. हम पावर नहीं ग्रैब करना चाहते, बल्कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक है, वो एंटी पुअर है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सब साथ आ जाएं ताकि डेमोक्रेसी को फिर से इस्टेब्लिश किया जाए. सो दिस इज नॉन कांग्रेसिज्म, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1967. It was the fourth जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन भी हुआ था और स्टेट इलेक्शन भी हुआ था. तो अब हम क्या देखते हैं कि जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है स्टेट असेंबलीज का, वो फरवरी 1967 में होता है. और ये पहली बार था जबकि कांग्रेस जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी विदाउट नेहरू के बिना पहली बार लड़ा जा रहा था इस इलेक्शन को. और जो रिज़ल्ट आया इस इलेक्शन का वो बहुत ही कहेंगे चौंकाने वाला था, दोनों ही नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी. क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स थे उस समय के, उन्होंने इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को क्या कहा, पॉलिटिकल अर्थक्वेक. इस रिज़ल्ट ने पूरी की पूरी अगर कहें कि पॉलिटिकल जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें भूचाल ला दिया, अर्थक्वेक आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि कांग्रेस जो है, ठीक है, मेजॉरिटी तो मिल गई लोकसभा में कांग्रेस को, बट अभी तक का ये लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स था और शेयर ऑफ वोट. 1952 से जितने भी इलेक्शन हुए उन सब इलेक्शंस में सबसे कम सीट इसी इलेक्शन में मिला और सबसे कम वोट्स भी इसी इलेक्शन में मिले, है ना. और इतना ही नहीं, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स थे उनमें से आधे जो है वो हार गए, और जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो हार गए. जैसे कि कामराज जो कि तमिलनाडु में हार गए, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र में हार गए, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में, के.बी. सहाय बिहार में. तो इस तरह के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, उनकी हार हो जाती है इस इलेक्शन में. तो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक, है ना. एक तो उसका नंबर ऑफ सीट्स कम हो गया, वोटिंग का शेयरिंग कम हो गया, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो हार जाते हैं. तो इस तरह का जो चेंजेस हम देखते हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पे आया नहीं, स्टेट लेवल पे भी जो इलेक्शन के रिजल्ट थे वो इसी तरह के थे. क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो कम से कम 7 स्टेट्स में उसने अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दी, जहाँ पर अभी तक वो मेजॉरिटी में थी. अब इस इलेक्शन के बाद वो मेजॉरिटी में नहीं रह गई, 7 स्टेट्स. इसके अलावा 2 और भी स्टेट्स थे जहाँ पर बिकॉज ऑफ डिफेक्शन इट वाज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 9 स्टेट्स थे जहाँ पर कांग्रेस पावर को लूज़ करती है. ये 9 स्टेट्स कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मद्रास एंड केरला. दीज वर द 9 स्टेट्स वेयर द कांग्रेस लॉस्ट पावर. एंड अगर हम मद्रास को देखें तो मद्रास में एक रीजनल पार्टी अभी उभरती है, एंड द नेम ऑफ दिस रीजनल पार्टी वाज DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. दिस केम टू पावर बाय सेक्यूरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी. इसको पूरी की पूरी मेजॉरिटी मिलती है DMK को, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को मद्रास में, और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है. यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि DMK को आखिर क्यों इतनी अच्छी बढ़त मिली, वो क्यों गवर्नमेंट फॉर्म कर पाया? क्योंकि DMK के ही लीडरशिप में एंटी हिंदी एजिटेशन जो है वो साउथ में हुआ था. क्योंकि ये समय जो था 1965,
1965 का मतलब ये हो रहा है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये कहा गया था कि 15 साल तक हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाई जाएगी, हिंदी राजभाषा रहेगी और इंग्लिश का भी यूज़ होता रहेगा, लेकिन 15 साल के बाद हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। तो 15 साल 65 में पूरा होने जा रहा था, तो उसके पहले ही एंटी हिंदी एजिटेशन जो है वो साउथ में स्टार्ट हो गया था। और इस एंटी हिंदी एजिटेशन का जो लीडरशिप किया वो किसने किया, वो कांग्रेस ये डीएमके ने किया, और उसी का फ़ायदा डीएमके को उस इलेक्शन में मिलता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।